اے میرے پیارے بندے سن، تو دکھی ہے، پریشان ہے اور تجھے لگ رہا ہے کہ سب کچھ تیرے خلاف ہو رہا ہے، لیکن آج میں تجھ سے سیدھا کلام کرنے آیا ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے جیون دیا، تیری ہر سانس کو لکھا۔ میری رحمتیں ان گنت ہیں، لیکن تجھے کبھی کبھی میری مرضی سمجھ نہیں آتی۔ آج میں تجھے وہ سمجھانے آیا ہوں۔ بندے جان لے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے وہ تیرے لیے ہوتا ہے، نہ کہ تیرے خلاف۔ ہر آزمائش، ہر پریشانی، ہر نقصان تیرے لیے میری رحمت بن کر آتی ہے، چاہے تجھے وہ شروعات میں جھلکے۔ کبھی کبھی میں تجھ سے کچھ چھین لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن تو روتا ہے، مجھ سے شکوہ کرتا ہے۔ پر کیا تو جانتا ہے میری ہر یوجنا میں تیرا بھلا ہے؟ میں تجھے ایسے راستے پر لے جاتا ہوں جو تجھے میری طرف لائے، تجھے گناہوں سے نکالے، تجھے تنہائی میں میری یاد دلائے۔ میرے پیارے بندے، تیری نماز میں جب تو روتا ہے، جب تیرا ماتھا سجدے میں گرتا ہے، جب تو کہتا ہے یا اللہ میری مدد فرما، تو سوچتا ہے کہ میں خاموش ہوں، لیکن نہیں، میں تو اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ میری رحمت تجھ پر برس رہی ہوتی ہے، لیکن تو اسے صرف دنیا کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں تجھے ٹوٹنے دیتا ہوں کیونکہ تیرا گھمنڈ ٹوٹے، تیری خدائی کی سوچ مٹے اور تو صرف میری طرف راغب ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے پکارے، میری طرف لوٹے، اور جب تو آ جاتا ہے میرے پاس تو پھر میں تیری ساری تکلیفیں ختم کر دیتا ہوں۔ بندے، یہ مت سوچ کہ اگر کوئی چیز تو چاہتا تھا اور وہ تجھے نہیں ملی تو وہ میری بے رخی تھی۔ نہیں، وہ میرا تجھ سے پیار تھا۔ میں تجھے وہ نہیں دیتا جو تو مانگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہوں جو تجھے چاہیے، جو تیری اصلی بھلائی میں ہے۔ کبھی کبھی تو ایسے رشتوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو تجھے تکلیف ہی دیں گے، لیکن تو دیکھ نہیں سکتا۔ میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، اسی لیے میں انہیں توڑ دیتا ہوں تاکہ تو نہ برباد ہو جائے۔ تو اپنے کاروبار میں ناکام ہو گیا، تجھے دھوکہ ملا، لوگ تجھے چھوڑ گئے، لیکن تو اب میری طرف لوٹ آیا ہے۔ یہی تو میرا مقصد تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تو واپس آئے، تنہا ہو، تاکہ میں تجھ سے بات کر سکوں۔ اور دیکھ، آج تو مجھے سن رہا ہے۔ بندے، دنیا تجھ سے چھین جائے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر تو مجھے پا لے تو تجھے سب کچھ مل جائے گا۔ میں وہ ہوں جو تجھے اندھیرے میں روشنی دیتا ہوں، جو تجھے بے وفا لوگوں سے بچاتا ہوں، جو تجھ پر رحمت برساتا ہے۔ جب ساری دنیا تجھ سے منہ موڑ لیتی ہے، میں تجھ سے نفرت نہیں کرتا۔ جب تو گناہ کرتا ہے، میں تجھے معاف کرنے کا انتظار کرتا ہوں۔ تو ایک بار سچے دل سے کہہ دے، یا رب، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر۔ میں تیری ساری پچھلی باتوں کو مٹا دوں گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں تجھے لگتا ہے کہ تجھ سے بہت سی غلطیاں ہو گئی ہیں، کہ تو اب لائق نہیں رہا میری رحمت کا، لیکن سن، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، غفور ہوں۔ میرے دروازے پر کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ بندے، جب تو پریشان ہوتا ہے اور تیرا دل ٹوٹتا ہے تو میں وہیں درد لیتا ہوں اور اس میں برکت ڈالتا ہوں۔ تیرا یہی ٹوٹا دل تجھے سب سے قریب میرے پاس لے آتا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے کبھی کبھی تنہائی دی، دھوکے دیے، رلایا، تاکہ تو صرف مجھ سے بات کرے، میری طرف دیکھیں۔ تو سوچتا ہے کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن جان لے تو میرے خاص بندوں میں سے ہے۔ میں اپنے خاص بندوں کو آزمائش دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے وہ سنبھل جائیں گے اور دوسروں کے لیے روشنی بنیں گے۔ تو راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں جاؤں، کیا کروں، لیکن تیرے دل میں جو ہلچل ہے وہ میری طرف سے ہے۔ میں چاہتا ہوں تو رک جائے، سنے سمجھے اور پھر چلے میری راہ پر۔ بندے، دنیا کی کوئی چیز تجھے تسلی نہیں دے گی جب تک تو میرے پاس نہیں لوٹے گا۔ مجھے اپنا بنا لے، مجھے ہی اپنا ہمسفر سمجھ، میں تجھے راستہ دکھاؤں گا جو سیدھا ہے، جو سلامتی والا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ آج سے تو صرف اتنا کرنا شروع کر، ہر صبح اٹھ کر مجھے یاد کر، مجھ سے بات کر، میری کتاب قرآن سے کچھ آیتیں پڑھ اور دیکھ کہ کیسے تیری زندگی بدلتی ہے۔ میں تیرے اندر کی روشنی کو جگانے آیا ہوں۔ بندے، تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ میں ہوں۔ جب سب تجھ سے دور ہو جاتے ہیں، میں تب بھی وہیں کھڑا رہتا ہوں تیرے انتظار میں۔ تو آج رو رہا ہے، لیکن یاد رکھ، ہر آنسو جو تو بہاتا ہے، میں اسے اپنے رحمت کے سمندر میں جمع کرتا ہوں اور اس پر تیری زندگی کی نئی عمارت بناتا ہوں۔ میرے پیارے بندے، تو دنیا میں بہت سے رشتوں سے گھرا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، جیون ساتھی، لیکن کیا تو جانتا ہے کہ ان سب میں سب سے سچا رشتہ کون سا ہوتا ہے؟
वो जो बिना किसी शर्त के तुझसे वफा करे, जो तेरे दुख में तेरे साथ हो और जब तू गिरे तो तुझे उठाने की कोशिश करे। यही असली रिश्ता है और यही असली मोहब्बत है। कुरान पाक में मैंने फरमाया है, और तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल एक बेहतरीन नमूना है उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिरत का दिन चाहता है और अल्लाह को ज्यादा याद करता है। कोहरा 33H-21। इसका मतलब यह है कि जब तू मोहब्बत का मयार समझना चाहे तो मेरे नबी सलाम की जिंदगी को देख। उन्होंने जिससे भी मोहब्बत की उसमें खुदगर्जी नहीं थी। वो रिश्ते निभाते थे सिर्फ मेरी खुशी के लिए और नीयत पाक होती थी। तू भी यही कर। अगर कोई तुझसे मोहब्बत का दावा करता है तो देख, क्या वो तेरे दुख में तेरे साथ है? क्या वो तेरी इज्जत करता है जब तू मजबूर होता है? अगर नहीं तो वो सिर्फ एक नकली परछाई है, असली रिश्ता नहीं। जो लोग प्यार का नाटक करते हैं वो कौन है? मेरे अजीज बंदे, दुनिया धोखे से भरी है, लेकिन हर धोखा तुझे तोड़ने के लिए नहीं होता। कई बार मैं खुद चाहता हूं कि तू सच्चे और झूठे रिश्तों में फर्क करना सीखे। कुछ लोग तेरे करीब आकर मोहब्बत का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका दिल तेरे लिए साफ नहीं होता। वो तुझसे फायदा उठाते हैं, तेरी मासूमियत का मजाक बनाते हैं और फिर तुझे अकेला छोड़ देते हैं। मगर याद रख, अल्लाह मक्कारी करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान 3:54। यह मेरी वादा है जो तुझसे मक्कारी करेगा, मैं उसके लिए एक ऐसी ठोकर तय करूंगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे बदले की आग में नहीं जलना। तुझे सब्र करना है और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान 846। असली परिवार कौन है? असली परिवार वही होता है जो तेरे दर्द को समझे, तेरी मजबूरी को सुने, तुझसे उम्मीद रखे लेकिन दबाव ना बनाए। कई बार खून के रिश्ते भी तुझसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन कुछ गैर लोग तेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये मेरी कुदरत है। मैंने रिश्तों को खून से नहीं नीयत से जोड़ा है। अगर तेरा अपना भाई तुझे छोड़ दे लेकिन एक दोस्त तुझे हर हाल में ये अपनाए तो समझ ले कि वो ही तेरा असली भाई है। यही इस्लाम का पैगाम है। रिश्वतों की पहचान उनके किरदार से होती है, खून से नहीं। नफरत क्या है और क्यों लोग तकलीफ देते हैं मेरे बंदे? नफरत एक ऐसा जहर है जो इंसान खुद पीता है लेकिन मरता दूसरा है। कई लोग अपने अंदर भरी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों से नफरत करने लगते हैं। वो तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरी गलतियों को सबके सामने लाकर शर्मिंदा करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि तू उनसे आगे ना निकल जाए। मगर मैं तुझसे कहता हूं, और जब वह लोग जो ईमान लाए अल्लाह को याद करते हैं तो उनके दिलों को सुकून मिलता है। सुन लो, अल्लाह की याद ही दिलों को सुकून देती है। कुरान 13 सफर 58। कभी कभी तू किसी से दिल से मोहब्बत करता है, उसे अपने सजदे में शामिल कर लेता है, उसकी हंसी को अपनी सुकून बना लेता है, और फिर वही शख्स तुझे तोड़ देता है। तू सवाल करता है, या अल्लाह, क्यों मैं तुझसे कहता हूं मेरे बच्चे, यह मोहब्बत का इम्तिहान था। क्या तू मोहब्बत को मुझसे ज्यादा किसी और से जोड़ बैठा था? मैं तुझे बताना चाहता हूं कि अगर कोई तुझे छोड़ जाए तो तेरा सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि उस वक्त से तेरा सच्चा सफर शुरू होता है। मेरी तरफ जो तुम्हें तकलीफ देती है उससे बेहतर मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं। कुरान वुड टर्न सो ऑन सोली बोली, माफ करना क्यों जरूरी है? मेरे प्यारे बंदे, जब कोई तुझसे बदसलूकी करे, धोखा दे या तेरे जज्बातों से खेले तो तुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। मगर क्या तू जानता है, सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो माफ कर सके। मैंने कुरान में कहा, और जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। कुरान 334। माफ करना तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह दिखाता है कि तेरा भरोसा सिर्फ मुझ पर है। आगे कैसे बढ़ना है? तू सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, मगर मैं तुझसे कहता हूं, यह तो शुरुआत है। तुझे बस एक चीज करनी है, अपने दिल को मेरे हवाले कर देना। तेरा काम है मेहनत करना और मेरा काम है नतीजा देना, और जो वहां अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वह काफी है। कुरान 65:3। अपने हर कदम से पहले मुझे याद कर, मुझसे मशवरा कर, और फिर जो होगा उसमें मेरे फैसले को मान ले। मेरे प्यारे बंदे, मैंने तुझसे हर एक लफ्ज मोहब्बत में कहा है। मैं चाहता हूं कि तू टूटे नहीं बल्कि झुके सिर्फ आए मेरे सामने, क्योंकि जब तू मेरे सामने सिर झुकाता है तो दुनिया तेरे सामने झुकने लगती है।
तू जिस परेशानी से लड़ रहा है वो तुझसे छुपी नहीं है और मुझसे भी नहीं। मैं जानता हूं कि तेरे दिल में कितनी उलझन है, कितनी थकावट है, कितनी बातें हैं जो तू कह नहीं पाता और कितनी दुआएं हैं जो तूने आंखों में आंसू ले हुए मांगी है। तू कहता है, ऐ अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और क्या सही है मेरे लिए। मेरे अजीज बंदा, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हर रास्ता अधूरा लगता है। तू आगे बढ़ना चाहता है मगर तुझे समझ नहीं आता कि किधर जाए। यह उलझन, यह बेबसी, यह सब मैंने देखी है। लेकिन क्या तूने सोचा है कि जब पानी एक ही जगह रुक जाता है तब उसमें सतह है। इसलिए मैं तेरे अंदर हलचल पैदा करता हूँ, तेरे सवालों के जरिए तुझे तलाश के रास्ते पर लगाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे ढूंढे और जो मुझे ढूंढता है मैं उसे ज़रूर मिलता हूँ। कुरान कहता है, जो लोग हमारी राह में जद्दोजहद करते हैं हम उन्हें अपनी राह दिखा देते हैं। सूर अलम कबूत 30:67। तू सोचता है कि क्यों हर बार तेरे दिल के करीब आने वाला धोखा दे जाता है? क्यों वो लोग जिनके लिए तूने सब कुछ छोड़ा वही तेरी पीठ पीछे वार करते हैं? बंदा, मैं जानता हूं कि ये जख्म गहरे हैं, लेकिन सुन, ये जख्म तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे मजबूत करने के लिए है। हदीस है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे इम्तिहान में डालता है। कभी कभी मैं तुझसे लोगों को इसलिए दूर कर देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं वो तेरे लिए सही नहीं है। तू देख नहीं पाता कि उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं जानता हूं बंदा, मुझे मालूम है तू रोया है, तू टूटा है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहता हूं, दिल में किसी के लिए बद्दुआ मत रख। वो जो तुझे रुला गए, जो तुझे नीचा दिखाकर चले गए, उनकी सजा मैं खुद दूंगा। कुरान में है, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। सूर अल माइदा 5:8। तेरा काम सिर्फ यह है कि तू खुद को साफ रख, अपने दिल को कड़वाहट से बचा, क्योंकि जिस दिन तू खुद को माफ करना सीख गया उस दिन मेरी रहमत तुझ पर बरसने लगेगी। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तेरे करीब आते हैं, जो सामने मुस्कुराते हैं मगर पीछे घोलते हैं, वो रिश्ते नहीं होते, वो इम्तिहान होते हैं। हदीस में है, मुनाफिक धोखेबाजा की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो तोधे और जब उस पर भरोसा किया जाए तो खयानत करे। मैं तुझे ऐसे लोगों से दूर कर रहा हूं ताकि मैं तेरे अंदर ऐसे लोगों को लाने की जगह बनाऊं जो तुझसे सच्चा प्यार करेंगे, तुझे समझेंगे और तुझे तेरे उस मकसद तक पहुंचने में मदद करेंगे जो मैंने तेरे लिए तय किया है। बंदा, तूने कभी खुद को देखा है मेरी नज़र से? मैं तुझे हर रोज उस वक्त भी देखता हूं जब तू टूट कर बिखर जाता है और उस वक्त भी जब तू मेरे नाम से सुकून ढूंढता है। तू मेरा अजीज है, मैं तुझे बेकार में नहीं बनाया। कुरान कहता है, हमने इंसान को बेहतरीन ढंग से पैदा किया। सूरह अतीन 954। तू खुद को कमजोर मत समझ। जो तू सोचता है कि तेरे बस का नहीं, वही चीज मैं तेरे लिए आसान कर सकता हूं। तू सिर्फ मुझसे दिल से मांगा कर। हर बार जब कुछ छीन गया तूने सोचा कि तेरी किस्मत खराब है, लेकिन कभी यह सोचा कि शायद मैंने तुझे उससे बचाया हो जो तुझे अंदर से मार देता। मैंने जब किसी को तेरे रास्ते से हटाया तो वो इसलिए था कि मैं तेरे लिए किसी और को ला रहा था जो तुझे वही इज्जत और सुकून देगा जिसकी तूने सिर्फ ख्वाहिश की थी। बंदा, तेरी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी, एक रिश्ता या किसी के अप्रूवल पर नहीं टिकी है। तू बहुत ऊंचा बनाया गया है। मैंने तुझे एक मकसद के साथ भेजा है और जब तू उस मकसद को समझ जाएगा तब हर दर्द, हर धोखा और हर उलझन का मतलब तुझे खुद समझ आ जाएगा। कुरान में है, क्या तुम यह समझते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा किया? सूर अल मोमिनून 23 से 115। तू थक गया है, मुझे पता है, तू रोया है, यह भी मुझे पता है, लेकिन बंदा, मेरी कसम, हर रात के बाद फज्र होती है, हर अंधेरा रोशनी में बदलेगा। तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, तेरी दुआएं लौट कर आएंगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन तू मुझसे जुड़ा रहा। तू मेरे नाम से दिल लगाकर चल, मैं तुझे वो भी दूंगा जो तूने मांगा और वो भी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। मेरे बंदे, तेरी आंखों में जो आंसू हैं मैं जानता हूं, तेरे दिल की जो तड़प है वह भी मुझसे छुपी नहीं है। तू रातों को जागता है, आसमान की तरफ देखता है और मुझसे कहता है, या अल्लाह, मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही? मैं तुझे पुकारता हूं लेकिन मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मैं भी चाहता हूं दौलत, इज्जत, कामयाबी, तू फिर मुझसे क्यों दूर है ये सब? तू सुन, ए मेरे रोशनी से भरे बंदे, आज मैं तुझे वो राज बताने आया हूं
जो मैंने उन खास बंदों को दिया है जिनके दिल सच्चे होते हैं, मगर वक्त की आंधियों ने उन्हें कमज़ोर कर दिया होता है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तू यह समझ ले, मेहनत तब तक फल नहीं देती जब तक उसकी जड़ें नियत में पवित्र ना हो। लोग मेहनत करते हैं सिर्फ दौलत के लिए, नाम के लिए, दिखावे के लिए, लेकिन अगर तू अपनी मेहनत की वजह में मुझे रखेगा, मेरी मर्जी, मेरी रहमत, मेरी बंदगी, तो फिर देख कैसे तुझ पर बरकतों की बारिश होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह नियतों को देखता है। तू कहता है मेहनत कर रहा है, लेकिन पूछ अपने दिल से, क्या उस मेहनत में तेरा रब शामिल है? अगर तू दौलत चाहता है लेकिन तेरा रास्ता झूठ, धोखा, रिश्वत या लालच से भरा हुआ है, तो कैसे उम्मीद रखेगा कि तुझ पर रहमत बरसे? मैं तुझसे वादा करता हूं, जो हलाल कमाई के लिए एक कदम बढ़ाता है, मैं उसके लिए 10 दरवाजे खोल देता हूं। तू यह ना देख कि दूसरे लोग हराम से अमीर हो रहे हैं। वो दौलत उनके लिए आजमाइश है, वरदान नहीं। लेकिन जो हलाल से सब्र करता है, उसकी दौलत बरकत बनकर आती है और पीढ़ियों तक रहती है। मेरे प्यारे बंदे, जब तू देखता है कि मेहनत के बाद भी तिजोरी खाली है, घर का राशन खत्म हो रहा है, रिश्तेदार दाने मार रहे हैं, तो समझ ले कि यह वक्त मेरा इम्तिहान है। मैं तेरी मेहनत को देख रहा हूं और तेरा सब्र मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कुरान में है, इन्लाह मुसाबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर तू अपने दिल में सब्र का दीपक जलाए रखेगा, तो मैं तुझ पर ऐसी रहमत की बारिश करूंगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। या रब, तूने इतना क्यों दिया? तू मेहनत करता है, लेकिन क्या दुआ करता है? वो भी पूरी ताकत और यकीन के साथ। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, यह तो एक पुल होता है तेरे दिल और मेरी रहमत के बीच। जब तू सच्चे दिल से पुकारता है, या अल्लाह मुझे मेरी मेहनत का फल दे, मुझे इतना दे कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैला। मेरे प्यारे बंदे, आज मैं तेरा अल्लाह ताला खुद तुझसे बात करने आया हूं। आज तेरे रूह के उस कोने में उतरकर तुझसे वह सब कहने आया हूं जिसे सुनने के लिए तू ना जाने कब से तरस रहा है। मुझे पता है तू थक गया है, तू उलझ गया है, तू परेशान है, तू डर रहा है। यह सब मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, मुझे सब दिखता है। हर बार जब तू गहरी सांस लेता है, जब तेरी आंखें नम हो जाती हैं, जब तू अकेले में बैठकर सोचता है कि आखिर कब सब ठीक होगा, मैं वहीं तेरे साथ होता हूं, तेरे पास। मैं जानता हूं दुनिया ने तुझे बहुत बार तोड़ा है, कभी अपनों ने छोड़ा, कभी गैरों ने ताना मारा, कभी हालात ने तुझसे वो छीन लिया जो तूने बहुत मोहब्बत से संजोया था। तुझसे जबरदस्ती सब्र करवाया गया और तूने किया भी। तू गिरा उठा, फिर गिरा और फिर भी चलने की कोशिश करता रहा, पर आज तुझसे नहीं छिपा है कि तू थक गया है। तेरा दिल अब जवाब दे रहा है, तेरे सवाल अब चुपचाप आंसुओं में बह रहे हैं। मेरे प्यारे बंदे, क्या तू सच में सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुनता? क्या तू समझता है कि तेरी पुकारें मेरे अर्श तक नहीं पहुंचती? क्या तू यह मान बैठा है कि तेरी दुआओं का कोई मोल नहीं? मेरे पास अगर ऐसा है तो आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताता हूं। हर बार जब तू टूटता है, हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू थक जाता है, उस पल मेरी रहमत तेरे बहुत करीब होती है। मेरे बंदे, तू मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यारा है। तू सोच कि जब कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो वो कितना तड़प जाती है। फिर मैं जो तुझसे अनगिनत बार ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क्या मुझे तेरी तकलीफ महसूस नहीं होती? मैं जानता हूं कि तू क्यों परेशान है। तुझे लग रहा है कि जो तू चाहता है वह तुझे नहीं मिल रहा। तू खुद से सवाल करता है, क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी है? क्या मेरी दुआओं में असर नहीं? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? तू इन सवालों में उलझकर अपने मन का चयन खो बैठा है। लेकिन सुन मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझे एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं। तेरा हर संघर्ष मेरी रहमत की तरफ एक कदम है। मैं तुझे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। मैं बस कभी कभी तुझसे कुछ चीजें इसलिए छीन लेता हूं क्योंकि मैं तुझे बेहतर देना चाहता हूं। जब तू एक टूटे हुए सपने को पकड़कर बैठा होता है, मैं चाहता हूं कि तू वह देख जो मैंने तेरे लिए आगे रखा है, पर तू बस वही देख पा रहा है जो आज तेरे पास नहीं है। मेरे प्यारे बंदे, एक बादशाह अगर किसी गरीब को अपने महल में बुलाना चाहता है तो पहले उसके तन से मैले कपड़े उतरवाता है, उसे नहलाता है, उसे शाही वस्त्र पहनाता है। तकलीफें भी वैसी ही हैं। मैं तुझे बड़ा बनाने से पहले तुझे हर कमजोर हिस्से से आजाद कर रहा हूं। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन जो तू झेल रहा है वो तुझे मजबूती दे रहा है, तुझे उस मुकाम तक पहुंचा रहा है जहां से तेरा नसीब बदलने वाला है। तू सोचता है कि लोग क्यों नहीं समझते,
तुझे क्यों वो तुझे बार बार परखते हैं, क्यों तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद को पहचाने। जब सब